Whether we are starting a new job or looking for a promotion in a current organization, we all know we need to go through a process of salary negotiations. But do we actually know salary negotiations किए कैसे जाते हैं, क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? As per a survey by salary.com, only 37% of the employees negotiate for their salaries, while an astonishing 18% of the employees have never negotiated for their salaries and increments. Even worse than that, around 44% of the employees have never asked for a particular number in their appraisals. जो उनको मिलता है वो लोग उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं और उसी के साथ वो काम करते रहते हैं. हाय, माय नेम इज अंकित गंगवाल. वेलकम टू माय चैनल. सो टुडे हम सैलरी निगोशिएशंस के बारे में बात करेंगे. आपको ऐसा क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आप जब नई जॉब में जाते हैं या फिर आपके अप्रेजल्स में आप बात करते हैं ड्यूरिंग फॉर योर प्रमोशन, तो आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट यू कैन प्रॉपरली निगोशिएट फॉर योर सैलरीज. Over the years, I have interviewed numerous candidates and come across a lot of techniques that people use to negotiate their salaries. And in this video, I'm going to share with you some of the techniques that might work for you as well. So as I mentioned, a lot of employees do not bargain on their salaries when they are getting a new job, or they do not know how to bargain on their salary so that they can get an additional number from the employees where they are going to get a new job. So this amount of less salary that you have not received because of not bargaining gives you a huge number over your career. So I'll just give you a very brief example onto what you could have got and what you actually received. So here in this calculation, I'm just presuming that you have a normal annual package of 10 lakh rupees an annum. So you are expecting an increment of 10% per annum. However, actual increment that has been given to you is approximately around 6%. आपका डिफरेंशियल अमाउंट है approximately 4%. तो आप अगर इस कैलकुलेशन में देखेंगे, अगर आपका 10 लाख का इंक्रीमेंट जो हर साल अगर 10% से बढ़ना चाहिए था, 11 लाख होता, फिर 12 लाख 10,000 होता, वो अब 10 लाख पे सिर्फ 6% बढ़ रहा है, 10 लाख 60,000 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ओवर द पीरियड ऑफ योर करियर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इफ आई टेक एन एवरेज करियर ऑफ 30 years, you are going to reach a salary amount of 54 lakhs approximately if an increment of 6% every year. However, अगर आपका इंक्रीमेंट हर साल 10% के आसपास होता तो आपका पैकेज would have been around 1.58 crore rupees at the end of 30 years. So, अगर मैं इसको कम करके भी चलूँ, अगर मैं 10% इंक्रीमेंट नहीं मानता और मैं प्रिज्यूम करता हूँ 8% होता, तो भी आपका पैकेज अराउंड 93 to 94 लाख रुपीज होता. सो व्हाट यू हैव लॉस्ट ओवर हियर इज, अगर मैं 8% मान के चलता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली एन अमाउंट ऑफ 3 crore 42 lakh rupees over a period of 30 years by just not negotiating for 2%. डिफरेंस समझ रहे हैं आप? ये अमाउंट कंपाउंड होता रहता है हर साल. सो आप यहाँ पे वो डिफरेंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपने एटलीस्ट 2% का बार्गेन कर लिया होता तो योर फ्यूचर वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट. सो नाउ लेट्स सी हाउ डू यू नेगोशिएट फॉर योर सैलरीज. सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग होती है टाइमिंग. अगर आप नई जॉब में जा रहे हैं एंड इफ यू आर गेटिंग दिस जॉब ऑफर towards the end of your appraisal cycle, like in the month of January or towards March or April, जब आपका increments due होने वाले हैं, तो you should not hesitate to ask for an additional amount. आपका due increment है उसको compensate कर सके. जनरली मान लीजिए अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता, आफ्टर योर नॉर्मल अप्रेजल्स आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते अराउंड 20 to 30%, आप उस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर में आप 40% 50% इंक्रीमेंट हाइक मानने से मत शर्माइए. आप ये मान लीजिए सामने वाले एम्प्लॉयर आपको खुद बता देगा वेदर दे कैन फॉल फॉर इट और नॉट, बट यू शुड नॉट लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स. सेकेंड होता है फियर. डर नहीं रहना चाहिए. आपको किस चीज़ का डर रहता है?
हो सकता है आपने कोई पर्टिकुलर नंबर मांगा तो सामने वाला आपसे वो जॉब ऑफर वापस ले लेगा, या फिर आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा ज़्यादा मांगूंगा अगर वो मेरे को नापसंद कर दें तो, या फिर वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। यही 3 सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं हर एक के मन में कि अगर मेरे हाथ से वो जॉब चली गई तो क्या। रिमेंबर दिस थिंग, जितनी जॉब की ज़रूरत आपको ही है उतनी ही एम्प्लॉय की ज़रूरत उनको भी है। अगर कंपनी आपको अप्रोच कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अनटिल अनलेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट आपको वो जॉब ऑफर नहीं मिला होगा। सो डू नॉट फियर इन आस्किंग और पुटिंग आउट द डिटेल्स व्हाट यू हैव इन योर हेड। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, डू नॉट कंसिडर योर अपकमिंग एम्प्लॉयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल। कंसिडर आप दोनों सेम टीम में काम कर रहे हैं, उसको भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू गेट ऑन टू अ मिड वे एंड रिजॉल्व आउट द पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, बिफोर आस्किंग फॉर अ particular amount or a salary hike from either your current employer or your new employer, do a proper homework। आपको ये पता होना चाहिए आपकी इस डेजिग्नेशन के लिए, इस जॉब रोल के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए मार्केट में क्या स्टैंडर्ड पे है, आपकी वैल्यू क्या है कंपनी में, वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। बी रीजनेबल एंड have a base behind what number you are asking for. Fifth tip, always have in mind 2 numbers. One is a minimum number and other is a expected number. So what it means is, आज आपको लगता है इस डेजिग्नेशन के लिए, इस जॉब के लिए आपको मिनिमम इतना अमाउंट मिल चाहिए ही चाहिए, बट आप अगर बार्गेन करने के लिए सामने बैठे हैं तो सामने वाला एम्प्लॉयर और एचआर भी आपसे बार्गेन जरूर करेगा। इट इज़ देयर जॉब। ओके, सो आज अगर मान लीजिए कि करंट सैलरी है 5 लाख रुपीज़ पर एनम, आपको नया जॉब ऑफर आपको लगता है इस डेजिग्नेशन के लिए हमको एटलीस्ट 8 लाख रुपीज़ पर एनम मिल सकते हैं, तो आस्क देम अराउंड 8.5 और 9 लाख रुपीज़, सो दैट अगर सामने वाला एम्प्लॉयर और एचआर आपको बोलता है कि हम आपको 9 लाख रुपीज़ नहीं, हम आपको 8 लाख रुपीज़ दे सकते हैं, इट्स वेल विद इन योर रेंज। बट अगर आपको 9 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं, it is a bonus tip for you. Okay, so have a minimum and an expected numbers along with you so that you also have that range जहाँ पे आप वो bargain कर सकें। Next tip, do remember everything in your salary is negotiable. Every salary component is negotiable. So if you are relocating to a new place, you can ask for a relocation allowance. If you are traveling from a very far away place to get back to your work, you can ask for a transport allowance, you can ask for a joining bonus, you can ask for your spouse relocation allowance. If you are asked to go on site outside the country, where you can ask कि आपको traveling allowance मिले once a year, twice a year. So all the components in your salary structure are negotiable. Feel free to talk. Next is have other offers. If you have offers from some other organization as well, it will definitely have a leverage on the company where you actually want to work, and you can quote that this organization is giving me this much, मेरे को यहाँ से इतना मिल रहा है। अगर आप मेरे को ये ऑफर को मैच कर सकते हैं, या फिर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी ही आपको वो अमाउंट ऑफर करने के लिए रेडी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क द न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ बेटर अमाउंट। नेक्स्ट टिप ड्यूरिंग सैलरी नेगोशिएशंस इज ऑलवेज बी पोलाइट। आप उनसे प्यार से मांगेंगे तो मिलेगा, जोर जबरदस्ती से कोई कुछ नहीं होता। ओके, सो इफ यू आर आस्किंग देम, सर कैन वी रिकंसिडर दिस अमाउंट, सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग सम चेंजेस इन द सैलरी स्ट्रक्चर, और यू कैन tell them, is it a possibility that we can again discuss and rethink over the salary package, because I believe this package is on a little lower side. Think about it, be polite and talk to them in that way. Next is take your time. Never be in a hurry to answer your HR or your new employer or your current employer whether you accept the salary amount that has been given to you. थोड़ा टाइम लो, समझो, go back to your home or go back to your quiet place, think about it.
आपको ये अमाउंट जो चाहिए था क्या ये उसको ऑफसेट करता है या नहीं करता है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं। ओके, आपके पास हमेशा एक टाइम गैप होना चाहिए बिफोर गिविंग एन एक्सेप्टेंस टू अ सैलरी ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, दैट इज थर्सडे फंडा। आज आप मान लीजिए मंडे के दिन आप ऑफिस जाते हैं, आप ईमेल बॉक्स ओपन करते हैं, आपको वहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स मिलते हैं, लोड्स ऑफ वर्क आपके पास आ जाता है, आपके पास बहुत सारा काम आता है, यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। देन आपके पास आता है यार निगोशिएट करने के लिए कोई। यार डू यू एक्सपेक्ट मैं आपसे निगोशिएट करूंगा उस समय? करना है तो कर, वरना निकल। दैट इज अ वेरी क्लियर अप्रोच। बट when you do this on a Thursday, when I'm approaching a weekend, I am getting into the weekend mode. So धीरे धीरे मेरा हेड भी क्लियर है, मैं शांत हूँ, और मैं थर्सडे को अगर बात करता हूँ तो I give the HR also a lot of time so that they can think over and come back maybe on Friday or then on Saturday. Okay, so आपको भी टाइम मिलता है और HR को भी टाइम मिलता है to think what is right and what is wrong. Okay, now comes in मेजर हैसल विच इज कंपनी का बजट नहीं है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको ये फेस करना पड़े कि आपका एचआर या आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि कंपनी का बजट नहीं है, हम आपको इससे ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है और क्या करना है। सो अगर आपके पास बजट का क्वेश्चन आता है तो आपको उनको ये बोलना है, सर मैम आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने मेरे को ये ऑफर दिया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल हायर नंबर देन दिस based on the experience and the knowledge that I am going to bring to this organization, the value I am going to bring on this organization, I think I deserve a little bit more. अगर ये बोलने के बाद भी आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि no, we cannot stretch our limits beyond this, then you can ask for a joining bonus or a sign-on bonus. Remember, you are already prepared for this kind of scenario or event. Okay, so now you can ask them whether the organization provides this type of arrangement where you can provide a joining bonus or a sign-on bonus. इससे आपका जो गैप है, जो आप एक्सपेक्टेड नंबर मांग रहे हैं और वो जो आपको ऑफर कर रहे हैं, वो गैप है वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है. यू कैन कम डाउन अ मिडवे. अगर ये बोलने के बाद देयर आर ओनली टू सिनेरियोज, वेदर द एम्प्लॉयर मे रीथिंक और दे कैन डिनाई. अगर वो रीथिंक कर रहे हैं, यू हैव वन द बैटल माय फ्रेंड. बट अगर वो इसको अभी भी डिनाई कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क देम, इज देयर अ परफॉर्मेंस रिव्यू आफ्टर 3 to 6 months. यू कैन गिव देम एन ऑफर कि बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस you chart out a particular criteria. If I'm able to meet those criteria, we can again revisit the salary numbers. Is that a possibility? You can always ask them. Okay, now you have given all the three options to the employer. Now if still they do say that it is not possible, then you should be clear in your head whether you are ready to walk away from this job or politely decline the job offer, or you still want to go ahead with this. You need to decide on this now. Based on my past experience of more than 10 years now, I can definitely say the companies are looking forward to hire a person. They do not want to go back to the same process where they are shortlisting a lot of employees, जहाँ पे वो एक का इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पे आपको बैकअप करें. अगर आपके पास ऑफर लेटर आ गया है, that means the company is liking you. Okay, they are considering you good for that particular designation. बार बार सेम प्रोसेस फॉलो करना कोई भी कंपनी को पसंद नहीं है. So in my experience, if you are following these tips, then you are definitely going to win the battle. So alright friends, I hope आपको ये सब टिप्स थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होंगी for your salary negotiations, for upcoming appraisals as well. If you like my video, do not forget to press the like button because it helps me understand आपको क्या पसंद है और क्या नहीं. Secondly, if you are new to my channel, do hit the subscribe button and the bell icon for all the latest notifications. Thank you.